वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 6 ऑफ 500 टॉप क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, इफ you are preparing for JKSSB, banking or central government jobs, then this topic is most important for your preparation and selection because these current affair questions are important for you. Guys, without wasting time, let's start. Earlier we have discussed 5 parts of current affairs 2019-20 and today this is 6th part. So without wasting time, let's start. Friends, first question is question number 20, that is, which country became the first to recognize the Indian pharmacopoeia? Guys, this question is repeated in previous video, but I have mentioned here because first question is for you only. You have to take the right option and answer me in the comment box. So guys, which country became the first to recognize the Indian pharmacopoeia? Here options are Iraq, Qatar, Afghanistan and Saudi Arabia. सो गाइज, आप जो है इसका आंसर गैस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ हाइपरसोनिक वेपन्स? हेयर ए इज़ फ्रांस, बी इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, सी इज़ चाइना, डी इज़ रशिया। गाइज, गेस द आंसर। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। हाइपरसोनिक वेपन्स जो है वो किसके पास है? रशिया के पास हैं, ठीक है। तो रशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज हाइपरसोनिक वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च्ड द सैटेलाइट CBERS-4A? किस कंट्री ने लॉन्च किया है सैटेलाइट CBERS-4A? गैस द आंसर गाइस। A is Russia and India, B is China and Brazil, C is China and United States and D is United States and Russia. आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हेयर द राइट आंसर इज चाइना एंड ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द यूरोपियन कंट्री दैट लेफ्ट द यूरोपियन यूनियंस EU 2050 क्लाइमेट न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट। So name the European country that left the European Union's EU 2050 climate neutrality agreement. Here A is Italy, B is France, C is Poland and D is Germany. Guys, guess the answer. Question number 23. I hope आपने आंसर गेस कर लिया होगा। Here the right answer is option C, that is Poland. पोलैंड ने जो है क्या कर दिया है? लेफ्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 24, which country has recently launched the space force focusing on warfare in space? Which country has recently launched the space force focusing on warfare in space? Here A is China, A is Russia, B is China, C is Belgium and D is United States. Which country has recently launched the space force focusing on warfare in space? Here A is Russia, B is China, C is Belgium and D is United States. गाइस, गेस द आंसर। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है स्पेस फोर्स, ठीक है। फोकस किसके ऊपर किया है? ऑन वारफेयर इन स्पेस। सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन डी, दैट इज US, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा सिंस 1976? हु वाज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा सिंस 1976? A is Manuel Marino, B is Howard Minnis, C is Charles Michael and D is Mia Mottley. So guys, guess the answer। 25th नंबर क्वेश्चन है ये। Here the right answer is क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन A, that is Manuel Marino Cruz, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। Manuel Marino Cruz was named as the Prime Minister of Cuba since 1976. Next question is, which country's Carnival of Alsat has been removed from the UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list? किस कंट्री का Carnival of Alsat has been removed from the UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list? Here A is
अंडोरा, बी इज लुक्समबर्ग, सी इज बेल्जियम एंड डी इज नीदरलैंड्स। गाइज गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का है ये जो नाम लिया हमने अभी, दैट इज कार्निवल ऑफ आल्स्ट। ठीक है, हैज़ बीन रिमूव्ड, और इसको रिमूव कर दिया गया है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी लिस्ट से। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बेल्जियम। आपने कार्निवल ऑफ आल्स्ट जो है इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, बेल्जियम के साथ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच कंट्री टॉप्ड इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD। विच कंट्री टॉप्ड इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो कौन सी कंट्री है उसके बारे में इज यहाँ पे जो बोला। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच कंट्री टॉप्ड इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD इज बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2019। सो हियर ऑप्शंस आर नीदरलैंड्स, Switzerland, Singapore, Australia. Friends, don't think these questions are difficult. These questions are not difficult, but you have a need to revise these questions. एक बार जो है अगर आप thoroughly read कर लोगे, इनको रिवाइज कर लोगे, then you might be able to tick the right option in your exam. ठीक है, क्वेश्चंस की टेंशन मत लो, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आप आराम से ऑप्शन टिक कर लोगे। ठीक है, सो guess the answer. Here A is Netherlands, B is Switzerland, C is Singapore and D is Australia. Here the right answer is question number 27, option A, that is Netherlands. Netherlands topped in the United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD is business to consumer B2C e-commerce index 2019. So यहाँ पे आप याद रखना B2C यहाँ पे आ गया तो नीदरलैंड का वहाँ पे नाम आ जाएगा टॉप करने में। Question number 28 is which country has launched the world's first ocean-going liquid hydrogen carrier ship? Suezo Frontier. नाम क्या है इसका? Suezo Frontier that can carry liquid hydrogen at -253 degrees Celsius. So A is United States, B is Japan, C is China, D is Russia. Guys, जो Suez Frontier है इसका किसके साथ रिलेशनशिप है, खाली इतना याद रखना। Here the right answer is, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन बी, दैट इज जापान। ठीक है, स्वेजो फ्रंटियर का किसके साथ रिलेशन है, जापान के साथ। सो जापान ने लॉन्च किया है ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ओशियन गोइंग लिक्विड हाइड्रोजन कैरियर शिप है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 विच सिटी होस्टेड द 25th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, दैट इज COP25। सो COP25 जो है इसका रिलेशन किस कंट्री के साथ है देखते हैं। ऑप्शन ए इज टोक्यो, बी इज बीजिंग, सी इज वाशिंगटन DC एंड डी इज मैड्रिड। सो गाइज हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन डी, दैट इज मैड्रिड। मैड्रिड सिटी होस्टेड द 25th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, दैट इज COP25। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच मैसेज हैज बीन इंडक्टेड, विच message has been inducted to UNESCO's prestigious heritage list. ठीक है, सो A is Nod Thai, B is Balinese massage। यहाँ पे जो सॉरी गाइज, यहाँ पे मैसेज नहीं है, दिस इज मसाज, मालिश जो होती है वो है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन था। बिच कई बार क्या होता है टाइपिंग एरर हो जाती है, हो सकता है MESSAGE लिखना हो और वहाँ पे क्या लिख दे कोई MA। सो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, तो यहाँ पे मसाज का जो कंसर्न है वो है मालिश से। सो विच मसाज हैज़ बीन इंडक्टेड टू यूनेस्कोज प्रेस्टिजियस हेरिटेज लिस्ट। सो हेयर A is Nod Thai, B is Balinese massage, C is Indian Ayurvedic massage and D is hot stone massage. Guys, guess the answer. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नाउड थाई। और ये किस कंट्री की मसाज थी,
थाईलैंड की फेमस मसाज थी, 2000 जो वर्ष पुरानी मसाज थी ये, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज विच कंट्री हैज इलेक्टेड अब्दुल माजिद, उसके बाद में है तैबून एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। विच कंट्री हैज इलेक्टेड अब्दुल माजिद तैबून एज इट्स प्रेसिडेंट। हियर ए इज लीबिया, बी इज अल्जीरिया, सी इज मोरक्को एंड डी इज तुनिसिया। गाइस गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज 31। 31 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, अल्जीरिया, ठीक है। ये जो अब्दुल माजिद तबून जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कहाँ से? अल्जीरिया से। सो अल्जीरिया इज द राइट आंसर। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमन करेंसी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय वेस्टर्न अफ्रीका। कौन सी करेंसी है, कॉमन करेंसी है जिसको जो है रिसेंटली अनाउंस किया है वेस्टर्न अफ्रीका में? ए इज COR, बी इज CON, सी इज NAT एंड डी इज ECO। गाइस गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन डी, दैट इज ECO, ठीक है। ECO इज द नेम ऑफ कॉमन करेंसी recently announced by Western Africa. Option D is the right answer. Next question is question number 33. Who has been sworn in as the new Prime Minister of Sri Lanka? A is Gotabaya Rajapaksa, B is Sajith Premdasa and C is Maithripala Sirisena and D is Mahinda राजपक्षा। गाइस गेस द आंसर। प्राइम मिनिस्टर जो है किनको, नया प्राइम मिनिस्टर किनको चुना गया है, यानी कि स्वर्न इन, जिन्होंने जो है क्या किया है, शपथ ली है न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे श्रीलंका के, उनका नाम क्या है यहाँ पे पूछा गया है। गाइस गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हियर द राइट आंसर इज महिंदा राजपक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। Question number 34 is name the theme of the annual report published by the United Nations Population Fund UNFPA on State of World Population 2019. Guess the answer, guys. तो यहाँ पे name the theme of annual report published by the United Nations Population Fund, that is UNFPA. देखो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसकी है UNFPA, ठीक है। तो ऑन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 एनुअल रिपोर्ट जो है, नेम द थीम ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी थीम के बारे में पूछा गया है, पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दैट इज UNFPA ऑन द स्टेट बर्ड पॉपुलेशन 2019। ये जो क्वेश्चन है रिपीट भी हो चुका है असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2019 में। सो हियर द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है 34। सो हियर द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिपीट द ऑप्शंस। ए इज वर्ड अपार्ट, reproductive health and rights in an age of inequality. B is the power of choice, reproductive rights and demographic transition. C is unfinished business, the pursuit of rights and choices for all. D is how our future depends on a girl at this decisive age. Guys guess the answer. Here the right answer is question number 34. Here the right answer is 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूनिफाइड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। ये थीम थी उसकी, ठीक है। किसकी? थीम ऑफ द एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसकी थीम ये थी, क्या थी? ऑप्शन सी, दैट इज यूनिफाइड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। The Special Olympics World Games 2019 was inaugurated at. The Special Olympics World Games
2019 was inaugurated at, ये क्वेश्चन बी कंबाइंड लोअर कोऑर्डिनेट सर्विसेज में रिपीट हो चुका है। द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 was inaugurated at, A is Toronto, B is Abu Dhabi, C is Singapore and D is Seoul. Guys, guess the answer. Here the right answer is क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन बी, अबू धाबी में हुए थे ये, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 वाज इनॉग्रेटेड एट अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकंड टर्म। हु अमंग द फॉलोइंग was elected as the president of Indonesia for the second term? Here A is Joko Widodo, B is Prabowo Subianto, C is सैंडियागो उनो और डी है यहाँ पे यूसुफ काला। गाइस गेस द आंसर। यहाँ पे राइट आंसर है 36 का ऑप्शन ए, जोको विडोडो। जोको विडोडो वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया फॉर द सेकंड टर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 इज वेयर वाज द 11th ब्रिक्स समिट 2019 हेल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 11th ब्रिक्स समिट 2019 held? A is Brazil, B is China, C is South Africa, D is Russia. Guys, guess the answer. 2019 के 11th ब्रिक्स समिट की बात की जा रही है। कहाँ पे हुआ था? आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन ए, ब्राज़ील में, ठीक है। वेयर वाज द 11th ब्रिक्स समिट 2019 हेल्ड? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 38, शेख काफिला बिन जायद अल नहायन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं शेख काफिला बिन जायद? सो हेयर ए इज इजिप्ट, बी इज सूडान, सी इज कुवैत और डी इज द यूएई। गाइस गेस द आंसर। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन डी, दैट इज द यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे शेख काफिला बिन जायद जो हैं इनको हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39 इज विच सिटी इज होस्टिंग द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, दैट इज COP25 आफ्टर चाइल्ड विड्रॉज। विच कंट्री इज होस्टिंग द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 आफ्टर चाइल्ड विड्रॉज? हियर ए इज मैड्रिड, बी इज शिकागो, सी इज ओटावा एंड डी इज न्यू दिल्ली। गाइस गेस द आंसर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैड्रिड। मैड्रिड इज होस्टिंग द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 आफ्टर चाइल्ड विड्रॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, जेनिन अनेज डिक्लेयर्स herself as interim president of which country? जेनिन अनेज declares herself as interim president of which country? A is Bolivia, B is Mexico, C is Costa Rica and D is Bahrain. Here the right answer is, guys guess the answer. जो जेनिन अनेज हैं उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है इंटरम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इंटरम प्रेसिडेंट किसका किया है उन्होंने घोषित अपने आप को? Here the right answer is क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन ए, दैट इज बोलीविया का, ठीक है। जेनिन अनेज जो है इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है बोलीविया का इंटर्म प्रेसिडेंट, ठीक है। सो गाइस टुडे वी हैव कंप्लीटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल परफॉर्म वेल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स पार्ट 7। फ्रेंड्स, आप जो है ये वीडियोस जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो आप भी थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।